ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, आपका थैंक यू, आपने हाईलाइट की बात। नो प्रॉब्लम सर। ओके, I start it again for you. Today we have to study about the principles of qualitative research, designing and qualitative study. In qualitative study, how the research design is approached and how we can uh, plan for conduction of qualitative research. I earlier talked about that the qualitative research is not about the numbers, figures, charts, diagrams, but it is about the narration. As in the previous lecture, you studied about the narrative form of the qualitative of the research that was qualitative, for which you all prepared an assignment on principles of research proposal. I am happy with all of you. Most of you, among of you, have prepared a very well research proposal. But few of you have just taken it an attempt and बस यल्ला माफी। तो जो लोग इस तरह करते हैं उन्हें चाहिए थोड़ा हिम्मत करें, खाली उसको गले से नहीं उतारें। जिनके मार्क्स 10 और 10 प्लस हैं आउट ऑफ 15, उनकी ये 10 की थी या 15 की थी? सर 10 की थी। हाँ चलें, तो सर 10 मार्क्स। 6 प्लस मार्क्स अच्छे मार्क्स हैं, 7, 8, 9, 10 अच्छे मार्क्स हैं। अगर कम है तो वो ठीक नहीं है। तो वो रीज़न ये है कि फिर पूरी चीज़ें आप लोग नहीं डालते उसमें। तो अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ से हमें एक सीन नजर आता है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं और आप लोग अपने माइक बांध रखें, फिर सबके बंद कर दूंगा मैं। ओके, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट कोई ले रहे? आई थिंक सो। इफ Zufisha is there, she is required to take screenshots and present me the attendance. Okay. Objective of today's lesson is as a group activity to plan qualitative study on the topic of leadership. आप कोई भी टॉपिक रख सकते हैं, आप अपने टॉपिक्स रख सकते हैं। To develop a PowerPoint presentation of this group plan, ये आपने ज़हन में रखना है। ये एक विद इन द क्लास असाइनमेंट है, लेकिन ऑनलाइन में पता नहीं अब मुझे सूटेबल ये रहेगी कि नहीं, आप बना सकेंगे नहीं, लेकिन इसको नोट करें और सोचते हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। To cover some basic ideas about qualitative research, set all of us the same footing using the gunman qualitative case study as example, and as a group activity, what is wrong with this? To introduce you to the idea of traditions, types of qualitative research. What is the need to know? What we need to know
यार ये प्रॉब्लम क्या है, आप लोग अब सारा दिन आते रहेंगे तो मैं फिर यही काम करूंगा, अब हम पढ़ेंगे तो नहीं। To develop this plan, the necessary components to develop qualitative research plan are: number one, what is qualitative research? I think so you are very well aware about this. We have discussed in detail uh, the qualitative research and differentiated it with from the quantitative one. What types of problems are best suited for qualitative research? How to write a qualitative purpose statement and research questions, and what traditions or type of qualitative research best fits our research problem, what type of qualitative data we should collect, identifying our procedures for analyzing the data, assuming our software package that will help with data analysis. So following are the questions to whom we have to respond in this today's activity. First of all, let me share with you what is the qualitative research. You know, qualitative research is the type of research where researcher explores a central phenomena, one key concept, only one key concept, and he asks the participants broader or general questions and collects that detailed views of the participants in the forms of words and images. And then he go for analysis and codes the data for description and themes and interprets the meaning of the information, drawing on personal reflections and past research, and writes the final report that includes personal biases and a flexible structure. बड़ा important बात यहाँ पे है, that includes personal biases. इसको हम देखेंगे कैसे लिखते हैं इसको. What do we need to keep in mind when designing a quantitative study? Following are the points which are necessary to keep in mind when we design a qualitative study. Number one, focus on process as well as outcomes. Let the design merge. डिज़ाइन मर्ज का मतलब ये है कि कोई भी आ, जो आप सर्टन टाइटल के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए डिज़ाइन ले रहे हैं, वो पूरे का पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व हो, उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो. यूज इंडक्टिव रीजनिंग, सो नॉट डिडक्टिव on the basis of some certain information, some induction in the body of knowledge have to be done. Develop a complex picture of the phenomena, studying many ideas with few participants and sites. Studying many ideas मीन जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि जब आप डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हो तो फिर डिफरेंट आपके पास आइडियाज आते हैं, उनमें से डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के व्यूज आते हैं, और discuss the context of phenomena, follow the scientific method. Scientific method is many time or in every of the lecture I am used to discuss with you. That is problem, question, method, and results. Starting our plan. Let's provide a title for our project. What should we do when we go to start the plan? Start with the research topic and a research problem. So what we have to do?
We have to identify the subject area of the topic for the study, specify the research problem, the practical issues that leads to need your study. Complete these sentences. The topic for this study will be, the study needs to be conducted because. अब ये वो सारी बातें हैं जिनकी एक मॉक प्रैक्टिस में आपको करवा चुका हूँ। टाइटल आपने सेलेक्ट किए, फिर पर्पस स्टेटमेंट आपने लिखी कि जी दिस टॉपिक, जिस तरह अभी मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो ये एक्चुअल डिज़ाइन का हिस्सा है, बातें टेक्निकल हिस्सा है, इसलिए हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। द टॉपिक फॉर दिस स्टडी विल बी, आगे ब्रैकेट के अंदर वो टाइटल, जो रिसर्च के टाइटल आप लोगों ने डे 1 से रखे हुए हैं, जिसपे आपने अपनी प्रपोजल भी बनाई, जिसपे आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाए, पर्पस स्टेटमेंट्स बनाई, और आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपना रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस बनाए। तो दिस स्टडी नीड्स टू बी कंडक्टेड बिकॉज, if I ask from you, answer to this question is, the rationale of the study. The study needs to be conducted because, ये हम रिसर्चर इस पे इसलिए काम करने जा रहा है क्योंकि आगे वो बात होगी जो डेफिशिएंसी है, जो रैशनल ऑफ द रिसर्च है, उसका जिक्र इस स्टेज पे होना होता है। लेट्स राइट डाउन द टॉपिक एंड द रिसर्च प्रॉब्लम लीडिंग टू आवर स्टडी। हाँ, ये एक अगेन स्ट्रक्चर है कि वो जो रिसर्च टॉपिक लिखना है या जो रिसर्च प्रॉब्लम लिखनी है, उसको सेंटेंस वाइज कैसे लिखना है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। यहाँ आप लोगों को अपनी वो डेफिशिएंसीज ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगी जो आप लोग पूछते हो कि जी हमने मेहनत बहुत की, 10 पेजेस की हमने असाइनमेंट लिख दी तो नंबर थोड़े। अब पेजेस की के इशू नहीं है, यहाँ देखें क्या टेक्निकलिटीज़ हैं उस सेंटेंस को लिखने में। अकॉर्डिंगली लिखा हो तो वो ठीक होता है, भले 1.5 लाइन का हो। मैंने बताया था शुरू में कि इसमें 15, प्रिफरेबली 13 to 15 वर्ड्स होने चाहिए, सिंगल सेंटेंस हो, पर्पस ऑफ द स्टडी इसके अंदर मौजूद हो, सेंट्रल फिनोमिना दिया हुआ हो, क्वालिटेटिव वर्ड्स यूज़ किए हों लाइक एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड, डिस्कवर, पार्टिसिपेंट्स का जिक्र हो, रिसर्च साइट का जिक्र हो। ये हमने बातें पहले सीखी हैं, जस्ट चूंकि बात हम डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स की कर रहे हैं तो उसको मुझे गो थ्रू एक दफ़ा करवाना है आपको। अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल फिनोमेना, जिसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च में आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जिक्र करते हो। फिर लेट्स स्टे अवे फ्रॉम क्वालिटेटिव लैंग्वेज दैट माइट मिसलीड रीडर्स। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट। रिमेंबर, क्वांटिटेटिव लैंग्वेज को हमने इस्तेमाल नहीं करना। क्वांटिटेटिव लैंग्वेज जो है वो क्वालिटेटिव टाइटल के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन का लफ्ज़, रिलेटिंग द वेरिएबल्स, प्रोवाइडिंग हाइपोथेसिस, मेजरिंग द वेरिएबल्स, अगर ये अल्फाज इस्तेमाल हो गए तो आपकी रिसर्च का डिज़ाइन जो होगा वो क्वांटिटेटिव बन जाएगा, ना कि क्वालिटेटिव होगा। सो टू अवॉइड फ्रॉम देम, here is a script for a good qualitative purpose statement. The purpose of this qualitative study is to replace letter with, आगे जो भी ब्रैकेट में कहे कि जो आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिखें। will be to understand, describe, develop, discover the central focus for participants, person, process, group, whatever the site. इसकी भी प्रैक्टिस मेरे ख्याल कोई 10 दफ़ा आप लोग कर चुके हैं, क्लास में भी हमने की, आपने लिखी भी थी। राइटिंग गुड क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस, तो ये मैं चूँकि डिडक्टिव प्रोसेस पढ़ाने का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले आपसे करवा के अब इसको फाइनली बता रहा हूँ कि फाइनल शेप इसकी क्या होनी चाहिए। अगर हम ऑनलाइन क्लास में ना होते तो मेथड कुछ और होता। अब आपने खुद से रिव्यू करना है, आपके पास अपनी असाइनमेंट्स पड़ी हुई हैं, उनको इनके सामने रख के देखना है कि क्या मिस्टेक्स वहाँ हो गई थी, क्या डेफिशिएंसीज रह गई थी, उनको आपने मीट करना है।
तो क्वेश्चंस नैरो द पर्पस, उसमें सेंट्रल क्वेश्चन होगा द मोस्ट जनरल क्वेश्चन यू कुड आस्क, फिर सब क्वेश्चन उसके बना सकते हैं, नंबर उसके लिमिट कर सकते हैं, और यूज गुड क्वालिटेटिव वर्डिंग फॉर दीज क्वेश्चंस, हाउ, व्हाट, डिस्कवर, जनरेट, एक्सप्लोर, आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब, आस्क what happened, what was the meaning to people of what happened over time, likewise इस तरह के अल्फाज आपने क्वालिटेटिव वर्डिंग के लिए यूज करने हैं। रिलेट, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, इफेक्ट, काज, इससे अवॉइड करना है। अब आप सब लोग ज़रा गौर कीजिए कि आपकी जो काजेशन वाली स्टेटमेंट्स हैं उसमें ये हैं, तो वो क्वांटिटेटिव की हैं, ये निकालेंगे तो क्वालिटेटिव बनेगी। इसके लिए स्क्रिप्ट आप देख लें कि कैसे लिखा हुआ है। सेंट्रल क्वेश्चन स्क्रिप्ट यूजुअली राइट ओनली वन, व्हाट डज इट मीन टू, लाइकवाइज राइट द पर्पस स्टेटमेंट, सेंट्रल क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चन फॉर आवर क्वालिटेटिव स्टडी। इस पे हमने काम किया हुआ है। आपने जब पर्पस स्टेटमेंट बनाई थी तो आपको याद है ब्रैकेट में आगे हमने मल्टीपल चीज़ें लिखी थी, उनके डेमोग्राफिक्स का जिक्र था, पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें हमने की थी। Let's design the method for this qualitative study. What to include? Data collection, analysis, representation, interpretation, validation, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ये हमने अभी रिसेंट पास्ट में जो रिसर्च प्रपोजल के पॉइंट्स या कंपोनेंट्स लिखे वो 3 तरह के थे। जनरल थे, क्रेसवेल के सोसाइटल लेंस था, विदाउट लेंस था, उसमें ये चीज़ें हमने शामिल की थी। व्हाट आर द क्वालिटेटिव ट्रेडिशंस, तो ये नरेटिव होती है, फिनोमोलॉजी, एथनोलॉजी, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी और केस स्टडी होती है। ये इसको मैं अभी स्किप करता हूँ क्योंकि डिटेल में जब इन्हें पढ़ेंगे तो आगे अलग अलग मैं सारी तो समझाऊंगा, फिर हम इस चार्ट की तरफ आएंगे। व्हाट क्राइटेरिया वी विल यूज टू सिलेक्ट अ ट्रेडिशन, तो दीज आर द क्राइटेरियन किसी भी ट्रेडिशन को सिलेक्ट करने के लिए कि आपने वो 5 जो डिज़ाइन है उनमें से कौन सा लेना है। डिज़ाइन से मेरी मुराद ये 5 बातें हैं, नरेटिव, फिनोमोलॉजी, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी और केस स्टडी। तो उसमें इंटेंट क्या है, फोकस क्या है, ऑडियंस कौन है, यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, जिन्होंने बात सुननी है आपकी, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। पर्सनल ट्रेनिंग स्किल्स क्या है और कंफर्ट लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर क्या है। फिर अपनी स्टडी के लिए हम ट्रेडिशन सेट करते हैं कि उसमें जो क्वालिटेटिव हम ट्रेडिशन ले रहे हैं सच प्रॉब्लम कैसी होगी, और जो हमने स्टडी पर्पस की है वो क्यों चूज की है। 2-3 मिनट रह गए, ये खुद ही ऑफ होगा, और ब्रेक जो बीच में होगी उसमें 10 मिनट्स में मैं नया कर दूंगा आप लोगों को CMS पे अपलोड, आईडी, मीटिंग आईडी। विद इन द ट्रेडिशन व्हाट डाटा विल वी कलेक्ट, हु विल बी स्टडीड, व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड। तो ये वो सारे सवालात बनते हैं जिनके जवाबात ऑलमोस्ट हम अर्लियर डिस्कस भी कर चुके हुए हैं। फोर कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टिंग प्रॉब्लम साइड स्टडी, कैन द पीपल एंड साइट्स हेल्प अस लर्निंग अबाउट द सेंट्रल फिनोमेना। ये सोचना है कि जिन लोगों को हम सेलेक्ट एज अ पॉपुलेशन कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, सैंपल का साइज ले रहे हैं, क्या हमारा जो स्टडी का सेंट्रल फिनोमेना है उसको ये कवर करेंगे, क्या हमारी उन तक एक्सेस होगी, क्या हमें उनसे इंफॉर्मेशन लेने की परमिशन मौजूद होगी, मिल सकेगी, नहीं मिल सकेगी। व्हाट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड इन द क्वालिटेटिव रिसर्च, ये 4 तरह की इंफॉर्मेशन, ये ज़राए हैं लेने के, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स हैं। अगर हम ऑब्जर्वेशन चूज करें तो कैसे कर सकेंगे, उसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशनल प्रोटोकॉल हमें बनाने पड़ेंगे। आपने पढ़ा है ना कि वो
अपेंडिसेस में के ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू प्रोटोकॉल अटैच करते हैं साथ, वो इसलिए करते हैं कि हमने लोगों से जो ऑब्जर्वेशन ली, इंफॉर्मेशन ली, उसकी गाइडलाइंस क्या थी। तो डिसाइड ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्टैंड्स, एंटर साइट स्लोली, कंडक्ट मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, फिर समरी उनकी बनानी है। फिर इंटरव्यू, इसी तरह इंटरव्यू के लिए प्रोटोकॉल हैं, इंडिविजुअल का करना है, फोकस का करना है, टेलीफोन पे करना है, ईमेल ईमेल पे जवाब लेने हैं, या फिर आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कुछ दे सकते होते हैं, हम 5 से 7, उन्हें आज़ादी होती है कि वो उसका खुल के अपनी मर्जी से जवाब दें। डाटा कलेक्शन अप्रोच जो है ये साइट पे स्टडी की जा सकती है, लोगों को किया जा सकता है, परमिशन लोगों की चाहिए होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो है वो अदरवाइज भी यूज़ हो सकती हैं। और फॉर्म्स नीडेड फॉर डाटा कलेक्शन, कुछ राइट अप में उनसे हम बातें ले लेते हैं। अब डाटा जब कलेक्ट हो जाता है तो ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू उसको हम इंटरप्रेट करने की तरफ आते हैं, उनके